میرے واجب الاحترام محترم دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے اوپر بے شمار احسانات ہیں اور انعامات ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید انعامات عطا فرمائیں گے۔ جو ہمیں اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ہمیں ہمارے پاس ہمیشہ رہیں گی، شرط ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں۔ اللہ کے انعامات اور احسانات میں سے ایک احسان یہ ہے کہ خیر اور شر کی وہ باتیں، بھلائی اور برائی کی وہ باتیں جو انسان عقل کے ذریعے نہیں سوچ سکتا تھا، وہ باتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی ہیں، تاکہ جو نیکی اور خیر کی باتیں ہیں، بھلائی کی باتیں ہیں، ہم ان کو اپنی زندگی کے اندر لیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں، ان کے اوپر عمل کریں، اور شر اور جو برائی باتیں ہیں ان سے بچ جائیں۔ تو پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے خیر کی بات بتائی تھی، 3 باتیں بتائی تھیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ جس کے اوپر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر بیان فرمائی کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرے گا، تو اللہ کے نبی قسم اٹھا کر بیان کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرے گا اس کے مال کے اندر کبھی بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ دوسری بات یہ تھی، جس شخص کے اوپر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، اس نے صبر سے کام لیا، ظلم اور زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو، مظلوم کو جو صبر کر رہا ہے، اس کو مرتبہ مقام عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو عزت عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ تھی کہ جو شخص لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، مانگنے کا پیشہ ور اپنائے گا، ہر وقت لوگوں سے مانگتا رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے تنگ دستی کا دروازہ کھول دیں گے، لیکن اس کے اوپر ہمیشہ فقر ہی رہے گا، کبھی بھی وہ مالدار نہیں بن سکتا، ہمیشہ ہی وہ لوگوں سے مانگتا رہے گا۔ تو آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ جو صبر کرے گا ظلم کے اوپر، یا زیادتی کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمائیں گے۔ کیسے عطا فرمائیں گے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ انسان کو اختیار ہے، جو اس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے یا زیادتی کی گیا ہے، اس کا وہ بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ بِمِثْلِهَا، کہ جتنا دوسرے شخص نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے اتنا تم اس سے بدلہ لے سکتے ہو، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ دوسرا ضابطہ کیا ہے؟ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ کیا معلوم جو ہم بدلہ لے رہے ہیں، اس بدلہ لیتے وقت ہم سے زیادتی ہو جائے پھر کیا ہم بنے گا؟ ایک تھپڑ اس نے مارے، ہم اسے تھپڑ ماریں گے، کیا زیادہ لگ جائے تھپڑ، پھر کیا بنے گا؟ بدلہ لینے کا اختیار ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دی ہے، اور ساتھ ہی اللہ نے فرمایا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ جو شخص معاف کر دے گا، صلح کر لے گا، تو اس کا اجر، اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے حساب کتاب اجر عطا فرمائیں گے۔ صبر کا معنی کیا ہے؟ صبر کا مطلب کیا ہے؟ صبر کا شریعت کے اندر تصور کیا ہے؟ تو صبر کا شریعت کے اندر تصور یہ ہے، نیکی کے وہ کام جن کو کرنے کا دل نہیں کر رہا، نیکی کے وہ کام جن کو کرنے کا دل نہیں کر رہا، ان کو اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر کریں۔ یہ اپنے نفس کے اوپر صبر کرنا ہوگا کہ نیکی کا کام ہے، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہے، ہمارے پاس وقت بھی ہے، ٹائم بھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو ہم نماز پڑھنے کا دل نہیں کر رہا، لیکن ہم نفس کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز پڑھنی ہے تو ہم نماز پڑھیں گے، تو یہ اللہ کا حکم سمجھ کر نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، تو یہ صبر کرنے والا ہوگا اپنے نفس کے اوپر۔ اسی طرح گناہ کے وہ کام جن کے کرنے کا دل بھی کر رہا ہے، موقع بھی میسر ہے، وقت بھی موجود ہے، اور ہمارے پاس
गुनाह करने के जो लवाजमात हैं, जो जरूरी चीजें, वो भी हमारे पास मौजूद है। यानी नफ्स, हमारे नफ्स की जो ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए हम गुनाह का काम कर रहे हैं, वक्त भी है, मौका भी है, लेकिन हम अल्लाह का हुक्म समझते हैं कि अगर हम गुनाह का काम करेंगे तो अल्लाह ताला नाराज हो जाएंगे, ये अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली बात है। जब ये सोचता है तो गुनाह से रुक जाता है, गुनाह से दूर हो जाता है। तो ये भी अपने नफ्स को ऊपर सब्र करना है। इसी तरह कोई हमारे ऊपर मुसीबत आ जाती है, या परेशानी आ जाती है, या तकलीफ आ जाती है, या कोई सदमा आ जाता है, उस पर सब्र करेगा, तब भी अल्लाह तबारक व तआला इसको इज्जत और मकाम मर्तबा अता फरमाएंगे। जो शख्स इस सब्र को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आएगा, इस सब्र के ऊपर चलेगा, तो कामयाबी उसके लिए मुकद्दर बन जाएंगी। यानी वो हमेशा हमेशा के लिए कामयाब होता जाएगा, नीचे कभी भी नहीं आएगा। ये तो है कि जितना भी इंसान इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं, कोई ना कोई इंसान परेशानी के अंदर, तकलीफ के अंदर, मुसीबत के अंदर, परेशानी के अंदर मौजूद है। कोई ना कोई, जितना भी इंसान इस दुनिया के अंदर, हर एक के साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर होगी। लेकिन कामयाब इंसान वो है जो अपनी मुसीबत और परेशानी के वक्त सब्र कर ले। मुसीबत जो आई है, जो परेशानी आई है, उसके ऊपर सब्र कर ले। कुछ इंसानों से ऐसे होते हैं जो जजा फजा करते हैं, हाय करते हैं, वाह वाह करते हैं, लेकिन उनके करने का कोई फायदा नहीं होता। कामयाब इंसान वो होगा, इज्जत और मकाम मर्तबे वाला इंसान वो होगा जो सब्र के वक्त, जो मुसीबत के वक्त, परेशानी के वक्त, तकलीफ के वक्त सब्र करेगा। जो शख्स सब्र करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला की माइयत, अल्लाह तबारक व तआला का साथ उस शख्स के साथ होगा। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि कोई शख्स किसी मुसीबत के अंदर है या परेशानी के अंदर है, वो ऐसे आदमी के पास जाता है जो उसकी परेशानी भी हल कर सकता है, उसकी मुसीबत को भी दूर कर सकता है। जब जो शख्स मुसीबत के अंदर मुब्तला है, दूसरे शख्स के पास चला गया, दूसरे इंसान के पास चला गया कि मेरी मुसीबत है, इसको दूर कर दे। आगे इंसान कहता है कि मैं आपकी मुसीबत दूर कर दूंगा, परेशानी दूर करूंगा, इसके अलावा आपके साथ अगर कोई और मसला होगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। जो शख्स मुसीबत के अंदर मुब्तला है वो किस कदर खुश होगा कि फलां आदमी का मेरे साथ ताल्लुक है, फलां आदमी का हाथ मेरे ऊपर है, तो वो खुश होगा। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर तुम्हें कोई मुसीबत आ गई है, परेशानी आ गई है, तो सब्र करते हो तो मेरी माइयत, मेरा साथ तुम्हारे साथ है। जब अल्लाह ताला का जो मुसब्बिबुल असबाब है, जब अल्लाह ताला का इंसान के साथ होगा तो उस वक्त इंसान को कोई नुकसान चीज नहीं दे सकेगी। कोई भी परेशानी है, कोई भी मुसीबत आई है, तो वो उसको नुकसान नहीं दे सकेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर बार बार जगह इरशाद फरमाया है कि जो सब्र इख्तियार करते हैं, अल्लाह ताला ने उसको कितना मकाम मर्तबा इज्जत अता फरमाया है। आपके सामने आयत पढ़ी है, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र के जरिए और नमाज के जरिए। इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला की माइयत, अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत सब्र करने वालों के साथ है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। तीसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब, जो शख्स सब्र करते हैं मुसीबतों के ऊपर, परेशानी के ऊपर, तो अल्लाह तबारक व तआला उनको बगैर बेहिसाब किताब अजर अता फरमाएंगे, बेहिसाब किताब अजर अता फरमाएंगे। इस जगह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, वस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, जो शख्स सब्र करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसकी नेकियों को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे। पांचवी आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, वल्लज़ीना सबरू इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिम व अक़ामुस सलाह, जो लोग सब्र करते हैं अल्लाह की रजा को तलाश करने के लिए, व अक़ामुस सलाह, और नमाज को कायम करते हैं, व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया, और खर्च करते हैं छुपा कर भी और एलानिया तौर पर भी, व यद्रऊना बिल हसनति सय्या, और बुराइयों को खत्म करते हैं नेकी के जरिए। उलाइका लहुम उक़बद्दार, यही लोग हैं इनका जो अंजाम होगा, जो इनका ठिकाना होगा वो अच्छा होगा। कैसे ठिकाना होगा? जन्नात अदनी यदखुलूनहा, अल्लाह तबारक व तआला इनको ऐसे बागात के अंदर दाखिल करेंगे जिसके अंदर वो हमेशा हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों को जन्नत के अंदर दाखिल करेंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम,
वअज़वाजिहिम वज़ुर्रिय्यातिहिम, ये खुद भी सब्र करने वाले, नमाज कायम करने वाले, अल्लाह के रास्ते के अंदर माल खर्च करने वाले, बुराइयों को खत्म करने वाले, ये खुद भी जन्नत के अंदर दाखिल होंगे। इनके अबौ अदाद में से, इनको औलादों में से और इनकी बीवी में से जो नेक होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको भी इनके साथ दाखिल करेंगे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, ये भी अल्लाह तबारक व तआला इनाम अता फरमाएंगे कि जन्नत के जो दरवाजे होंगे वहां फरिश्ते खड़े होंगे, जो उन लोगों ने सब्र किया होगा, फरिश्ते उन लोगों के ऊपर सलाम कहेंगे कि सलाम किया हो तुम्हारे ऊपर इस चीज उस चीज की वजह से जो तुमने सब्र किया है, फनिअम उक़बद्दार, अल्लाह ताला ने इसका बदला तुम्हें अच्छा अता फरमाया है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला और जगह इरशाद फरमाते हैं, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी मिन तहतिहा अन्हार, जो लोग ईमान लेकर आए और नेक अमाल किए, लनुबव्विअन्नहुम मिनल जन्नति गुरफन तजरी मिन तहतिहा अन्हार, अल्लाह तबारक व तआला इनको ऐसे बालाखाना अता फरमाएंगे, ऐसे महल्लात अता फरमाएंगे, ऐसे बालाखानों के अंदर, ऐसे महल्लात के अंदर ठिकाना अता फरमाएंगे जिसके अंदर वो हमेशा रहेंगे। निअमा अजरुल आमिलीन, ये जो काम करते थे, सब्र करते थे, नेकी का काम करते थे, इनका बदला अल्लाह तबारक व तआला ने दी है। अल्लज़ीना सबरू अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और जो लोग सब्र करते हैं और अपने रब के ऊपर भरोसा करते हैं, इनको भी अल्लाह तबारक व तआला महल्लात और बागात अता फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, वस्साबिरीन वस्साबिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, जो लोग मर्द और औरतें सब्र करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए मग़फ़िरत का ऐलान भी करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को माफी फरमा देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत बड़ा अजर भी अता फरमा देते हैं। तो देखो कुरान पाक की कुछ आयत आपके सामने बयान की, तो इनके आयत मुबारका के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो लोग सब्र करते हैं उनको किस अंदाज से बयान किया है, अल्लाह तबारक व तआला उनको क्या मकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने और मकामात पर भी ये इरशाद फरमाया कि जो सब्र करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उनको बहुत ज्यादा इकराम ये है कि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ होता है। अल्लाह ताला की मदद और नुसरत सब्र करने वालों के साथ होती है। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को रहनुमाई का इमाम मुकर्रर फरमाते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को जन्नत की खुशखबरी सुनाते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को फरिश्तों के जरिए सलाम खिलवाते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को नेकी करने वाला फरमाते हैं। अल्लाह ताला सब्र करने वालों को आजिज लोगों में शुमार करते हैं। तो ये जो सब्र है, इसको अपनी जिंदगी के अंदर लेके आए, ताकि कोई भी तकलीफ आ जाए, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, हम उसको अल्लाह की आजमाइश समझकर, अल्लाह का इम्तिहान समझकर उसके सामने डर जाए। फिर देखें अल्लाह तबारक व तआला हमें मकाम, मर्तबा, इज्जत कैसे अता फरमाते हैं। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह सब्र करने वालों के बारे में मकाम और मर्तबा बयान फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सब्र करने वालों को खुशखबरें सुनाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही बुखारी के अंदर हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सब्र करेगा तो अल्लाह ताला भी उसको सब्र की तौफीक अता फरमाते हैं। जो सब्र करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको भी सब्र की तौफीक अता फरमाते हैं, और सब्र से बढ़कर कोई इंसान को खैर अता नहीं की। ये जिस शख्स को सब्र अता किया गया वो समझे कि सबसे बड़ी जो खैर है वो मुझे अता की गई है, सबसे बड़ी भलाई है वो मुझे अता की गई है। इस तरह दूसरी रिवायत है जामे तिरमिज़ी के अंदर, हजरत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि सबसे ज्यादा तकलीफें, सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे ज्यादा मुसीबतें किस पर आती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे ज्यादा परेशानी आती हैं। सबसे ज्यादा परेशानियां, सबसे ज्यादा तकलीफें अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर आती हैं, और उसके बाद जो अंबिया के ज्यादा करीब होते हैं, जो अंबिया के ज्यादा करीब होते हैं, उन पर फिर तकलीफें ज्यादा आती हैं। इंसान पर तकलीफें उनके दीन के मुताबिक आती हैं। इंसान पर तकलीफें, आजमाइशें, मुसीबतें, परेशानियां दीन के मुताबिक आती हैं। अगर इंसान दीन के अंदर मजबूत है, दीन के अंदर मजबूत है तो तकलीफें भी उतना सख्त आएंगी। अगर दीन के अंदर कमजोर है तो तकलीफें भी उस कदर आएंगी। हत्ता कि एक वक्त आएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसानों पर तकलीफें आते रहेंगे, आजमाइशें आते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि इंसान जमीन के ऊपर चल रहा होगा लेकिन उसका कोई गुनाह भी नहीं होगा। सब्र करने की वजह से जो मुसीबतें आ गई, जो परेशानियां आ गई हैं,
कोई दुख आ गया है, तकलीफ आ गई है, उसके ऊपर जो सब्र कर रहे हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके ऊपर एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जमीन पर बगैर गुनाहों के चल रहा होगा, लेकिन उसके ऊपर कोई गुनाह भी नहीं होगा। तो इसी वजह से हम सब हजरात ही करें कि जो भी हमें कोई मुसीबत आ जाए या परेशानी आ जाए, अल्लाह का इम्तिहान समझकर उसके सामने डर जाएं, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें, दीन के मुताबिक चलें, ताकि दुनिया वाली जिंदगी भी हमारी अच्छी बन जाए और आने वाली जिंदगी भी हमारी अच्छी बन जाए। क्योंकि यहाँ दुनिया के अंदर तो नहीं रहना, दुनिया के अंदर तो चंद दिन के लिए रहना है, कोई वक्त तो मुकर्रर भी नहीं है, अल्लाह कोई हमें मालूम भी नहीं है कब हम इस दुनिया से चले जाए। ठीक ठाक होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, इतला दी जाती है कि फोत हो गया, पता नहीं है, ऐसे भी वक्त आ जाता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खैर की बातें बताई हैं, जो शर की बातें बताई हैं, जो खैर की बातें उनके ऊपर अमल करें और जो शर की बातें हैं, जो बुरी बातें उनसे दूर रहें, ताकि ये हमारी चंद दिन की जिंदगी जो है अच्छी बन जाए और आने वाली जिंदगी भी हमारी अच्छी बन जाए। मरने के बाद जो कब्र की जिंदगी है, मैदान माशर की है, ये सारी जिंदगी हमारी अच्छी बन जाए। क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर एक लम्हे की जिंदगी गुजारें, 60 साल की जिंदगी गुजारें, 70 साल की जिंदगी गुजारें, जो कुछ भी हम गुजार के जाएंगे वो सारा का सारा हमारा रिकॉर्ड होगा, हमारे महफूज हो जाएगा। अल्लाह ताला का फरमान है, वइन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर 2 निगरान मुकर्रर किए हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। यअलमूना मा तफ़अलून, जो कुछ भी तुम करते हो वो उनको लिख रहे हैं। एक दाहिने बैठा है, एक बाएं बैठा है, जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो लिख रहे हैं। वहुज़ियल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीह वयक़ूलूना या वैलतना मा लिहाज़ल किताब। कल क़यामत के सामने, इन मुजरिमों के सामने, इन बदबख्तों के सामने, गुनहगारों के सामने ये रजिस्टर, ये नामा अमाल रख दिए जाएंगे। इनसे कहा जाएगा, इक़रा किताबक, ये पढ़े आपका अमाल नामा है, ये पढ़े आपका अमाल नामा है। जब इंसान पढ़ेगा तो फिर कहेगा, यक़ूलु या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युग़ादिरु सग़ीरतन वला कबीरा इल्ला अहसाहा। इस किताब को क्या हो गया है, इस अमाल नामे को क्या हो गया है, इसने छोटी बात छोड़ी है ना बड़ी बात छोड़ी है, सारा का सारा रिकॉर्ड करके महफूज कर दिया है। ववजदू मा अमिलू हाज़िरा, जो कुछ भी हम करके जाएंगे, अच्छा काम करके जाएंगे या बुरा काम करके जाएंगे, सारा का सारा तुम अपने सामने पाओगे। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, अल्लाह ताला फरमाते मैं किसी के ऊपर जरा बराबर भी जुल्म नहीं करूंगा, किसी के ऊपर जरा बराबर भी ज्यादती नहीं करूंगा। जो को 60 साल की जिंदगी के अंदर करके आओ या 70 साल की जिंदगी के अंदर करके आए हो, ये सारा का सारा तुम्हारे सामने आ जाएगा। जब हमको मालूम है कि अल्लाह का फरमान भी सच्चा है, हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी सच्चा है, तो हम जो काम भी करें, नेकी का काम करें तो सोच समझ कर करें कि रियाकारी भी नहीं है, दिखलावा तो नहीं है, क्या नेकी का जो काम कर रहा हो ये ठीक है या गलत है, ये सुन्नत के मुताबिक है या सुन्नत के मुताबिक नहीं है, ये काम जो मैं कर रहा हो ये काम काबिल कबूल है या नहीं है, ये क्या वजह है। तो इसी वजह से आप लोगों से गुजारिश है कि जो अल्लाह ने नेकी के काम करने का हमें हुक्म दिया है, जिनके करने का हुक्म दिया वो काम करें। जिन चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोका है उनसे रुक जाए, फिर देखेंगे दुनिया वाली जिंदगी भी हमारी अच्छी बन जाएगी, दुनिया वाली जिंदगी भी हमारी सही बन जाएगी, ये जन्नत वाली बन जाएगी, और आने वाली जिंदगी भी हमारी अच्छी बन जाएगी। वहां भी हमें कोई अजाब नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगा, हम महफूज हो जाएंगे। यहाँ तकलीफ होती है, कोई मुसीबत आती है, परेशानी होती है, तो साथ कोई आदमी आ जाता है। जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, कब्र के अंदर अकेले होंगे, फिर तो हमारा कोई साथ भी नहीं होगा, कोई देखने वाला भी नहीं होगा, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा, तो फिर उस वक्त हमारा क्या बनेगा। तो अल्लाह ने जो हमें ये चंद दिन की जिंदगी दी है, इसको कुरान के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक गुजार जाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया वाली जिंदगी के अंदर हमें कामयाब करे और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए, कलमे वाली मौत नसीब फरमाए, और आने वाली जिंदगी भी हमारे लिए अच्छी बन जाए। तो इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुसीबतों के ऊपर सब्र करेगा, जो जुल्म के ऊपर सब्र करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत और मकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे। जब आप इसके ऊपर यकीन करेंगे, इस बात के ऊपर अमल करेंगे कि अल्लाह का नबी का फरमान सच है, कि जो मुसीबत पर अमल करेगा या जुल्म के मुसीबत पर सब्र करेगा या जुल्म के ऊपर सब्र करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको इज्जत मकाम और मर्तबा अता फरमाएंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको मुसीबतों के ऊपर और परेशानियों के ऊपर सब्र करने की तौफीक अता फरमाए।